of Bhagwan Dhanvantari. Om Dhanvantari Namaha. Moving forward, I would like to introduce today's expert, Professor Dr. Narayan Chandra Das, sir, who will be shedding light on the topic treatment of healthy people. It is my great pleasure to introduce Professor Dr. Narayan Chandra Das, sir. Dr. Narayan Chandra Das, CREV Guru in Kai Chikitsa with an illustrious career spanning over 49 years. He has served as ex-principal Gopabandhu Ayurved Mahavidyalaya Puri, Orissa and ex-principal KATS Ayurved College and Hospital, Ganjam, Odisha. He has also been a Senate member of Berhampur University, Ganjam and Utkal University, Odisha. Dr. Das is also a member of the Royal Society of Health, London. Thank you, sir. And आप अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लीजिए. ठीक है, ठीक है. Most welcome. Doctor, now I would like to invite sir to proceed with the lecture, sir. You may start, sir. Okay. मैं शुरू करें जी. सुनाई जी देता सर. है? यस सर. यस सर. जी यस सर. जी जी जी. ओम धन्वंतरे नमः. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुमंत्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः. जो पुरी में भगवान in this opportunity in the event of Gyan Ganga organized by RAV, it is my high regard to Padma Bhushan Vaidya Devendra Tribuna ji, President of the Managing Committee RAV, along with all managing body members. I also grateful our director RAV Vaidya Vandana Shiroha Ma'am ji for selecting me to proceed in this webinar as a speaker. Finally, I also welcome all the dignitaries, all our respected, honored gurus who have joined, as well as Shishya who have participated in this event. Lastly, pranam to eminent gurus of this universe who have protected Ayurveda since a long. Let me speak regarding my topic. This is treatment of healthy people. वो हमें जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत में एक संदर्भ लाए हैं. जो सुस्त लोग हैं उनको हम चिकित्सा करते हैं. तो इसलिए हमें जो ये आर्टिकल ये जो प्रस्तुत किया है, तो दिस इज इन व्यू ऑफ लाइक साइंटिफिक आर्टिकल. इसका सेप साइंटिफिक आर्टिकल जैसा है मैं ऐसा रखा है, लेकिन ये जो विषय वस्तु है ये सबको मालूम है, लेकिन हमें इसे कैसे जो प्रस्तुत किया और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमें ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया. तो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है? दिस इज ए लिटरेरी आर्टिकल इन ल्यू ऑफ टेक्सचुअल reference envisages how to keep a man in healthy condition and not to be afflicted from disease, which is the great enemy of human population. Through this article, we have tried to impress readers how to take care to lead a healthy life till late age. तो मैं एक जैसा प्रश्न करेंगे, तो ह्यूमन पॉपुलेशन का शत्रु कौन सा है? वो एक जनरल क्वेश्चन होता है. तो जरूर लोग कहेंगे ना हमारा जो आगे सामने वाला सब्जेक्ट में हम वो आएगा, वो रेफरेंस में आएगा, लेकिन मेरा कहना है वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन का
पहला नंबर शत्रु है रोग। तो इसका ये जो आर्टिकल है, इसका एम क्या है, ये आर्टिकल का लक्ष्य क्या है? The topic itself is questionable regarding why an absolute healthy person will be requiring treatment. वो जो सुस्त होता है वो चिकित्सा क्यों लेंगे? लोग हंसेंगे, वो हमारी पर लोग हंसेंगे, वो एक सुस्त लोग है, वो चिकित्सा, लेकिन चिकित्सा इसको इसलिए चाहिए, we don't know what will happen tomorrow. A person who is working today, he may be static tomorrow. There may be some problems out of which he may succumb to disease. So in order to preserve and protect his health, so we have to think something. As per WHO declaration, WHO जो declare किया, वो diseases are growing in number and intensity. In developing countries, ours like India, status also the same. The following statistics is one of the evidence. मैं एक evidence रखा, रोग बढ़ते जा रहा है, इसके लिए क्या evidence है? Patient figure during last 5 to 10 years is continuously growing as per statistics. As per the study, in 2021, there were 101 million people in India with diabetes and 136 million with pre-diabetes, while 315 million people had high blood pressure, 254 million had generalized obesity, and 351 million had abdominal obesity. Additionally, 213 million people in the country had hypercholesterolemia. Across India, the disease burden or disability adjusted life years rate in 2016 was 4 for diabetes. अभी आप देख लीजिए, अभी जो लोग 60 तक, up to the year of 60, we have given a declaration, he is young. After 60 only, we call him an old man. But you see, as the age develops, age advances, but disability also similarly comes with his age. So that's why that is the main problem. Our age has advanced, our age has increased, but the disability have also similarly increased. The now ICMR, Indian Council for Medical Research, they declare 54% diseases are due to non-communicable diseases group. Non-communicable diseases group are 54%, and the rest of the group are due to either infection or due to accident or something else. But at least 54% in our front, this data shows the disease, non-communicable diseases are also equally very high. So, see, I am not going in detail. This is the statistics regarding hypertension, regarding this our diabetes. But concisely, I must tell now the capital of diabetes is India. India was far back when China was the first, then India was the second. So gradually, India become ranks first as regards diabetes and also regarding so many diseases that is not yet to be established. So इसमें क्या है? In spite of increase in quality of life, हमारा लाइफ में क्वालिटी बढ़ गया, हमारा इनकम थोड़ा बढ़ गया, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, but disease incidence has not come down. Provision of healthy facility is a constitutional right. हमको स्वास्थ्य के बारे में सचेतन करना और प्रोविजन देना, हमको सुस्त रखना, ये हर सरकार का काम है। और कॉन्स्टिट्यूशन को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। All governments should provide. Thereby, opening of new medical colleges and hospitals are coming up in mushrooming way with an aim to mitigate this alarming situation. अभी इतना रोग हो रहा है, हमको चिकित्सा करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हमको डिस्पेंसरी चाहिए। अभी ये मैं एक स्टैटिस्टिक्स लाया, the government has increased number of medical colleges
and subsequently increased MBBS seats. There is an increase of 82% in medical colleges from 387 before 2014 to 704 as of now. Medical hospitals there in India in 2013 were 19,817, having 6,28,708 beds in the country. Medical care facilities under Ayush has also been increased. हमारा जो आयुष में कॉलेजेस बढ़ा है, हॉस्पिटल बढ़ा है, आयुष सेंटर बढ़ा है. In total, there are 273 BMS colleges, 220 private and 53 government, 3,598 hospitals and 25,723 dispensaries and 7,55,780 Ayush doctors and 12,500 Ayush health and wellness centers. So our medical system, if we see, mostly engaged, how to extend treatment facility to the sick. Knowledge of a disease-free life is yet to be discovered and implemented. ये मेरा कहने का very specifically I emphasize on this. तो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, हमारा जो मॉडर्न एलोपैथी, हमारा आयुर्वेद, हमारा होम्योपैथी, जो नेचुरोपैथी, सब कोई हमें कैसे चिकित्सा करेंगे, अच्छा चिकित्सा देंगे, वो दे देंगे, वो आराम, वो दे देंगे, आराम हो जाएंगे. लेकिन थोड़ा बहुत हमें सोचना, तो थोड़ा बहुत हमें सोचना चाहिए. There should not be. I was a faculty in postgraduate department for 30 years. And I used to tell my students, after passing your post-graduation, at least you go, I used to encourage them, you go and open a Swasthya Rakshana clinic in your locality. Swasthya Rakshana clinic means that will come later. The Swasthya Rakshana clinic, I think, to my perception, to my observation, all over India, there you will never find a clinic called Swasthya Rakshana clinic. So everywhere there is a clinic. What they do? They treat diseases. They treat diseases. They take care of ills. They take care of ill, but they are not encouraged to prevent diseases. They never take care how there should not be diseases. But this is our basic thing. It has been cultivated in Ayurveda. Our rishis have donated us this knowledge since a long, some 5,000 years. At least they should have done research for at least 1,000 years. And they have come forward with some research avenue that how a person will remain healthy. We'll discuss later. So now we come to introduction. So our aim is over. What is our aim? Now it is introduction. So introduction, this is a strong message for the public and every citizen of India under the banner of Ayurveda Amritanam. At least our government, our Ayush department, this is with the association of our RIV, Ayurveda Amritanam. Ayurveda for one health, immunity, irrespective of age, sex, class, community, religion, and civilization. The insight lamented through this article is a 1,000 years research-based truth discovered by Rishi. So what is this discovery? The discovery is Swasthasya Swastha Rakshanam and Aturasya Vikara Prasanam. My question is, are we successful in handling Swasthasya Swastha Rakshanam properly? We have our doctors, are they inclined, are they encouraged to open in a specific clinic that is called Swasthya Rakshana clinic? We don't treat ill, we treat only healthy people. People will ask, I'm a healthy man, why should I pay money consultation? Then you don't know what will happen tomorrow. Now there is advertisement and messages are coming in our
this uh, phone, our cell phone in Odisha, I don't know in other places, in Odisha cell phone it is coming, there is advertisement from government that everybody should go have a free CT scan in order to determine whether he has any CVA, cerebrovascular accident. That is a proneness. So they should do. This message is coming, advertisement is coming. So similarly from Ayurveda side, we have a lot of avenue. We have a lot of things. We can also bring to the knowledge of people so that at least our people, our brothers, our the citizens can lead a healthy life till a late age. So this protection to healthy people and treat the ailing persons are the two aim for creation of Ayurveda. Ayurveda was created, everybody know, with a two aim. But I think one aim is practically neglected. One aim is neglected. We are taking care, but however it is possibly neglected. Why? Why we say this? Why she brought this information for us? Bhava Mishra, everybody is knowing. Bhava Mishra. It is not far. It is only 600 years before. Bhava Mishra was a scientist. He was there and he came. He appeared during the period of Vasco da Gama in South. And he has said, what? Na rogaha karsya kara, palaksha kara, dehasya chesta hara, drishtva indriya shakti sankhya kara, sarvanga pida kara, dharmartha akhila kama muktishu, mahavigna swarupa bala, prananasa haranti shanti, jaditesan, utah praninam. Yeah, it is said by Bhava Mishra. So diseases, I was telling, diseases are the only enemy of human population. Why? Why? Na rogaha karsya kara. Rogaha balakya kara. Rogaha dehasya chesta hara. And indriya shakti sankhya kara. Sarvanga pida kara. And dharma, artha, kama, and moksha, chaturvarga to attain. So these roga are the main hurdles. And bala, our bala, we know three types of bala. And bala means strength, and bala means capacity of doing work. So this is also deteriorated with the affection of disease. So our lookout is, through this article, we say there will not be disease. A person will remain healthy. Next. From the ancient age, it is a constant exercise to win over disease and attainment of long life, along with retaining youth. हमें पूरा जुबा रहना चाहिए, हमें बूढ़ा नहीं हो गए. ये हमारा लुकआउट था ओल्ड एज में. In the present era, the study on long life is very intensive, which is still questionable before us. So in this context, I am sensitizing the people how to keep them healthy by following Dinacharya, Ratricharya, and Rutucharya, that is separately named. Rutucharya, I am not going to discuss here for the length of time, but Bhava Mishra, same Bhava Mishra, he has said. So this is some rules and regulations for doctors. This is in medical ethics. Medical, you see, medical science, we have all, okay, medical science ethics, we are aware of it. There are ethics, rules, and regulations. Simani Bhava Mishra, he has lamented, he has written, specified some rules for doctors, for Ayurveda doctors. What is that rule? Now, here rule है, मानवो जेन विधिना स्वस्थ तिष्ठन्ति सर्वदा तमेव कारयित वैद्य यतः स्वास्थ्य सदा ईप्सितम्. इसका अर्थ क्या है? ये जो आदमी, वर्ल्ड का पॉपुलेशन, हमारा भारत का पॉपुलेशन, हमारा नियर बाय पॉपुलेशन जैसा स्वस्थ रहेंगे, वो इसका काम वैद्य का ऊपर न्यस्त है. मानवो जेन विधिना स्वस्थ तिष्ठन्ति सर्वदा. वो आदमी जैसे स्वस्थ रहेगा, इसको देखभाल करना ये वैद्य का कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है, ये मेडिकल एथिक्स है. हम करते क्या?
हम करते नहीं। कोई आता है तो दो, हमारा कंसल्टेशन हम लेते हैं, वो ट्रीटमेंट देते हैं, बस ट्रीटमेंट लेके वो चला जाता है। तो लेकिन वो हमें इससे थोड़ा दूर है। मेरा ये कहना क्या है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी इन दिस प्रोफेशन फॉर लास्ट 50 years, 1975 to 25 years. I am 50 years. I have a lot of encounters in this regard. So then क्या होगा ना कैसे होगा, how a person will remain healthy, इसका तरीका क्या है? यह तरीका है। क्या तरीका? ना दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या যতোদিতাল आचरण पुरुष सुस्थ सदा तिष्ठन्ति नान्यथा नान्यथा unfailingly, without any prejudice, the person will remain healthy if we guide him in lieu of dinacharya, ratricharya and ऋतुचर्या। देन क्या इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? हमारा वैद्य लोग कैसे इसको करेंगे? नहीं, इसलिए हम लाए, मैं पहले बोला है, इनके साइंटिफिक मैनर हम इसको प्रस्तुत किया। वो क्या है, इसका मटेरियल्स क्या है? Materials in this article we have concentrated upon dinacharya and ratricharya alone. ऋतुचर्या although compulsory shall be dealt afterwards. हमें दो चीज हमें डील किया इसमें आर्टिकल में, एक है दिनचर्या और रात्रिचर्या। इसका मेथड क्या है? इसको हमें लेबोरेटरी नहीं चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी हमें नहीं चाहिए, हमको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। Method is very simple and does not require a laboratory or sophisticated instrument. People are to be aware and sensitized against benefits of dinacharya, which will act to boost their immunity and ensure them as a shield from the diseases of cough to pox. हमें अभी छींक जैसे हमको होता है, स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग से जैसे हमें टीबी तक, ये हमें इम्यूनाइज कर देगा। ये दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। फॉर इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? ये जो टॉपिक है हमारा आयुर्वेद का, जो टॉपिक है दिनचर्या और ऋतुचर्या और रात्रिचर्या, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसको तो हमको लेबोरेटरी नहीं चाहिए, उनको कैसे करेंगे ना? फॉर इम्प्लीमेंटेशन द फॉलोइंग मीडिया शैल बी यूटिलाइज टू सेंसिटाइज द पीपल एट लार्ज। अभी जैसा देखिए, अभी अदर कंटेम्पररी साइंस, मेडिकल साइंस, अभी अदर होम्योपैथिक साइंस, अभी हर रोग अभी देते हैं। अभी बस का पीछे लिखा हुआ है, वो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, आप सुनते रहेंगे। तो हमें कैसा, हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, हमें गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करना चाहिए। इसको करने से लोग हमारा सुनते रहेंगे, आपको पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल ज्यादा करना, कंस्ट्रक्शन करना, इसको नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोगी तो नहीं रहेंगे, सब सुस्त रहेंगे। क्या है वो? मेरा नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, रेडियो एक्सेट्रा में हम इसको देंगे। और क्या है? प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, बुलेटिन, highlighting behind public transport vehicles. Then all eyes hospitals, corridors, wall printing, etc. All eyes OPD, IPD should have Swasthya Bhutta clinic. Then the wellness center operated throughout India should pay importance in dinacharya, ratricharya, ऋतुचर्या to decrease incidence of disease. All government forums should be highlighted of the benefits of dinacharya and ratricharya. Then steps, हमें कैसे करेंगे? दिनचर्या में क्या बोलेंगे? लोग को क्या बोलेंगे? लोग को क्या मालूम होना चाहिए वो सुस्त रहने के लिए? ये कंपलसरी है। आप एक बार करके लोग को हम बताएंगे, यही भाई इसको करके देखो। तो ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठम, ब्राह्मण मुहूर्त जागरण, जागरण। अभी मैं आपसे चीज बताएंगे, वो अभी लोग तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो लेकिन हमारा शास्त्र में लिखा है, जो सुबह प्रभात काल में वो सोते रहेंगे, वो इनका आयुष हानि होगा। ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गुत्ती मांस, जो सोढ़ा मांस
जो सड़ा मांस माछ जो खाते हैं, जो लोग खाते हैं, कुटी मांस, स्त्री और वृद्धा स्त्री संपर्क, बालार्क। बालार्क क्या है? बालार्क मतलब है भाद्र मास का सूर्य किरण। और क्या है? स्तरुणांग दधि। स्तरुणांग दधि है नूतन दधि। नूतन दधि। अभी साइंस बोल रहा है, अभी जो G20 समिट उड़ीसा में हुआ था, आई वाज ए स्पीकर देयर। मैं इनको बोला, मैं इनको लोग को दूषित नहीं करना चाहिए, वो दधी हमको, दधी से इनको बचाना चाहिए। लेकिन लोग बोलते हैं, अभी साइंस बोलता है दधी खाओ, डायबिटीज रोगी दधी खाओ। लेकिन वो हमारा आयुर्वेद बोला है आहार अंत पिबेत तक्र, आहार अंत पिबेत तक्र। वो तक्र क्या है, दही क्या है, वो सब बराबर नहीं है। नहीं, लोग को जानकारी नहीं है। वो दही खाते हैं, वो मरते हैं। दही खाते हैं, डायबिटीज होते हैं। लेकिन ये लोग को जानकारी चाहिए। ये लोग क्या है? पुतिमांस स्त्री और वृद्धा, बालार्क तरुण दधी। तरुण दधी जो खाएगा, इनका सद्य प्राण हरण होगा। ये लिखा है, प्रभाते मैथुन में निद्रा। प्रभाते मैथुन में निद्रा। प्रभात काल में जो मैथुन करेगा, प्रभात काल में जो निद्रा जाएगा, वो मरेगा। वो मरेगा, सद्य प्राण हरानी सब। ये जो होता है ना, इसमें हम मरेंगे। लेकिन लोग को जानकारी नहीं। लोग बोलते हैं यार क्या बकबक करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये लोग को, ये लोग को जानकारी के लिए इज वेरी इंपोर्टेंट। इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, इट इज आवर शास्त्र, इट इज सेड इन शास्त्र, इट इज नॉट ए दिस ऑर्डिनरी थिंग। सो ये क्या है? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठत सुस्थ रक्षार्थ आयुष। To preserve his life, a healthy person should get out of bed at Brahma Muhurta. That is between 5 and 6 in the morning, or roughly 45 minutes before sun up. The final 3 hours of the night, Brahma Muhurta, are from 3 a.m. to 6 a.m. Then is Usapan. उषापान, जलपान। उषापान क्या करेंगे? क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में लिखा है निशांता चे पिबेत तोय। निशा का मतलब है रात्रि। वो रात्रि खत्म हो गया तो सुबह आगे पानी पिए। लेकिन लोग पूछते हैं साहब मैं कितना पानी पिएंगे? एक एक आदमी बोलते हैं मैं ½ लीटर पीता हूँ। वो एक एक आदमी में तो मैं 2 लीटर सर पीता हूँ। एक एक बोलता है मुझे 1 लीटर। ये हमें पता नहीं। लेकिन शास्त्र में हमारा क्या बताया है? शास्त्र में बताया, लोग को जानकारी नहीं। हमें 2 अंजलि, 2 अंजलि जो 2 अंजलि, अंजलि इन ए क्लोज फीस्ट, क्लोज फीस्ट 2 अंजलि बताया गया है। लेकिन इतना ही जल, वो जितना बड़ा आदमी, जितना बच्चा, वो बड़ा आदमी, बड़ा बड़ा अंगूठे, वो इतना ही पिएंगे। वो 2 अंजलि पिएंगे। लेकिन कैसा जल पिएंगे? वो ठंडा फ्रिज से निकाल के, लोग अभी फ्रिज से निकाल के पीते हैं, लोग बाहर से निकाल के ना। वो क्या है? ठंडा जल ओनली 2 सीजन में पिएंगे। इनको बताना पड़ेगा। वो शरदी चियते पित्तम, शरदी चियते पित्तम। शरत काल में पित्त का प्रकोप होता है। तो शरत काल में हम ठंडा जल पी सकते हैं। और क्या कब पिएंगे? ना ग्रीष्म काल में हम पिएंगे। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म गर्मी होता है तो हमें फिर था संचय होता है, तो हमें इसमें पिएंगे। लेकिन ये बेगर 4 महीना छोड़ के और जितना 8 महीना रहा, वही महीना में हमें पिएंगे क्या? गर्म पानी। गर्म पानी। जैसे बसंत काल में हेमंत निचिते बसंत चक्रवृत्ति, बसंत काल में प्रकोप हो गए तो हमें बसंत में गर्म पानी पीना चाहिए। और सब ऋतु में हमें गर्म पानी पीना, उष्ण पानी पीना चाहिए। लेकिन कितना पिएंगे? जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए। प्रिफरेबली जो प्रीवियस इवनिंग में तो कॉपर कप में रखा है। अच्छा, लोग, सरकार क्या करता है? सरकार मॉस्किटो नेट देते हैं लोग को, वो मच्छर काटते हैं, काट के मलेरिया कर देते हैं। तो मलेरिया करने से लोग मर जाते हैं। तो लोग को मच्छरदानी देता है। तो क्यों मच्छरदानी? तो हम क्यों नहीं बताएंगे? अरे एक कॉपर ग्लास दो, सरकार एक कॉपर ग्लास देगी, सब लोग कॉपर ग्लास में रख के पानी पिएंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होगा?
कपर कप में रखने से बेनिफिट क्या होगा ना, इनका इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो जाएंगे फ्रॉम बैक्टीरिया, इसका इंटेस्टाइन बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे, इसका पेरिस्टालसिस बढ़ेगा, इसको किडनी साफ हो जाएंगे, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। लेकिन हम बोलेंगे कॉफी खाओ कॉफी, एक टी दे दो, सुबह उठ के निशांता से पीबे कॉफी ही, हम दूसरा बता देंगे तो क्या होगा ना, इसमें होगा किडनी नष्ट हो जाएगा, हमारा एनर्जी कम हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रेन एड्रेनल ग्लैंड को ज्यादा पड़ेगा, हमारा एक्साइटमेंट ब्रेन में बढ़ जाएगा, विदाउट एनी रीजन ब्रेन विल स्टार्ट फंक्शनिंग, ब्रेन में जो वेव है वो वेव बढ़ जाएगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा, हमारा जो हैबिट फॉर्मिंग हो जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें वी हैव टू प्रिपेयर वन मॉड्यूल एंड वी कैन गिव इट, सेंसिटाइज द गवर्नमेंट इफ दिस इज डन। अरे आप मॉस्किटो नेट देते हैं, इसको क्यों नहीं देंगे, वो लोग के लिए हितकारी होता है। नेक्स्ट एकदम नश्य कर्म, सब दिन आपको नश्य चाहिए। हमें जब स्कूल में यह वक्तव्य रखते हैं, बच्चों का बोलते हैं तो आपको इस बार गणित में मैथमेटिक्स में कितना मार्क रहा है, वो बच्चे लोग बोलता है, कोई बोलता है 80, कोई बोलता है 70, कोई बोलता है 60, मैं सबको बोलता है अरे तुम क्या 99 रखने के लिए प्रस्तुत है ना, बच्चों हाथ दिखाते हैं, बोलते हैं हाँ हम रखेंगे। मैं बोला ठीक है, कल से आप एक काम करो, सरसों का तेल हर दिन सुबह नश्य लेके स्कूल को आओ। ये जब कोविड टाइम में वो बहुत प्रसिद्धि लाभ किया था, तो जो आई एम फॉर्चुनेट, जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट इसको प्रमोशन किया था। लेकिन उड़ीसा में जो वो टीवी होता है, उड़ीसा टीवी, ये टीवी में मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन जाने जो नश्य कैसे लेना चाहिए। तो नश्य जो लेना चाहिए वो तो प्रतिवर्ष होता है। नश्य 5 प्रकार का, जैसे आपको पता है, नामनं चाप पीड़श्च द्वापनं प्रतिवर्षस्थ वर्ष कर्मस्तु विज्ञान नस्त कर्म के पंचम। वो 5 प्रकार का जो नश्य कर्म है वो प्रतिवर्ष आप लेना चाहिए सब लोग को। इसको क्या करेगा, नासा ही शिरोसो द्वारम, नासा तो सिर का द्वार होता है, तो यही दवाई डालेंगे तो सीधा चला जाएगा इधर, तो ब्रेन को, आपको आंख को, आपको कान को, आपको भटाई को, ये सब कुछ आपका दृष्टि शक्ति और सब कुछ बढ़ेगा। ये सबको पता है। हमारी आयुर्वेद का जितना गुरु है वो तो मनीषी है, वो बहुत बड़ा बड़ा फोरम में काम कर रहा है। मैं इनके लिए बोला नहीं, ये छोटा जो हमारा बच्चा है, बच्चा बच्चा का मतलब है हमारा शिष्य शिष्य है, वो उनके लिए मैं इनको जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इसको थोड़ा एनकरेज हो, वो इसको भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट करे तो हमारे आयुर्वेद का डेवलप हो। तो ये कर्ण पुराण हमें करना चाहिए, कर्ण पुराण, बस कर्ण पुराण में काम वो पता है सबको, मैं इसमें ज्यादा नहीं। और अभ्यंग, अभ्यंग के बारे में मैं जरूर आपको थोड़ा जानकारी दूंगी, अभ्यंग क्या होता है। और लोग क्या बोलते हैं, आजकल का युग का बच्चा, आजकल का युग का जो लड़का होता है, वो लड़की होता है, वो लोग बोलता है मैं तो इतना गालियां देता हूँ मेरे पेशेंट को, मैं बोला अरे अभ्यंग आप नहीं करता है। तो अभ्यंग का जो है वो बोलता है मेरा बॉडी से थोड़ा गोंद निकलता है, बॉडी से जब तेल लगाएंगे मेरा बॉडी से फाउल स्मेल निकलेगा। मैं बोला तुमसे बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन अभ्यंग करने से क्या है, जो श्लोक लिखा है, अभ्यंग आचरेत नित्यम, अभ्यंग आचरेत नित्यम, जो हर दिन अभ्यंग करेगा, वो अभ्यंग के लिए आपको कोई हॉस्पिटल को जाना नहीं पड़ेगा, कोई पंचकर्म सेंटर को जाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई वेलनेस सेंटर को जाना नहीं पड़ेगा। आप खुद घर में 10 मिनट बैठ के अभ्यंग करो। अभ्यंग आचरेत नित्यम, वो एक बार जो हमारा खुला है स्पा, हमारा खुला है वेलनेस सेंटर, वो आप वहीं पे जाकर क्या करने के लिए तो बताया नहीं हमें शास्त्र, शास्त्र बताए हैं अभ्यंग आचरित नित्यम, सब दिन क्या करेगा वो, तो वो बुढ़ापा बुढ़ापा वो जैसे वो 500 माइल दूर में रहेगा। नित्यम सजरा श्रम बात, वो जरा 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 2 प्रकार का होता है, एक है काला जो जरा और दूसरा होता है अकाला जो जरा।
काला जो दरा वो काला जो दरा और अकाल, ये काला जो जरा और एक अकाल जरा, आपको सबको पता है, जानकारी है। तो जरा क्या होगा? कोई जरा नहीं आएगा, कोई जरा नहीं आएगा, ना काला जाएगा ना काला जाएगा। काला जरा आ सकता है क्योंकि वो बयस का साथ बंधा हुआ है, वो काला जरा। लेकिन जो काला जरा ज्यादा आता होता है वो नहीं आएगा। जरा और श्रम, श्रम मीन्स वी फील टायर्ड, वी फील इजीली टायर्ड, वो टायर्डनेस नहीं आएगा। और क्या होगा? ना बातो हा मीन्स आवर बातरो विल बी रिमेन आउई, बातरो का। एंड दृष्टि प्रसाद कर्म, दृष्टि, तो आंख का दृष्टि शक्ति बढ़ेगा, पुष्टि आपका पुष्ट रहेगा शरीर, पुष्ट आयु, आयु आयु, आपका आयु पुष्ट होगा। एक आदमी को जो वो इनको 60 साल जिंदगी रहना पड़ेगा, वो अध्ययन करने से वो 70 साल हो जाएगा। इनको पुष्ट आयु, स्वप्न सु तो दाढ़, स्वप्न सु, वो नींद में ऐसा होगा, नींद का गोली जरूरत नहीं पड़ेगा, वो नींद का गोली इन्हें नहीं चाहिए, वो ऐसा सो जाएगा नींद का गोली। और स्वप्न सु त्वक, सुत्वक, वो त्वक जो है ना शाइनिंग, स्किन विल बी शाइनिंग एंड दाढ़, वो दृढ़ बनेगा, दृढ़ बनेगा। इसीलिए तो हम पंचकर्म में वो अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, लड़के को बोलते हैं कि ये इनका रेफरेंस है, ये इसको थोड़ा इसको ये करो। और शिर श्रवण पादेश तब विशेषण सीरियते, और शिर में, श्रवण में और पाद में इसको थोड़ा ध्यान देकर अध्ययन करना चाहिए। और व्यायाम, अभी व्यायाम करना चाहिए। अभी व्यायाम क्या है? हमारा सुश्रुति में लिखा है व्यायाम को 100 योजन, 100 योजन एक आदमी 1 साल में चलना चाहिए। 1 योजन कितना होता है? 1 योजन होता है 8 माइल, 8 माइल। तो 100 योजन का मतलब है 800 माइल। 800 माइल को 365 में हर दो तो 3 किलोमीटर आता है। तो कम से कम 3 किलोमीटर एक लोग चलना चाहिए। लेकिन क्या है आजकल का, क्या है आजकल जो मॉडर्न साइंस होता है, जो साइंस होता है, मैं मेडिकल साइंस को नहीं बताता हूँ, जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, अभी जो अच्छा अच्छा चीज है वो हमसे ले लिया। अभी लोग को बताते हैं तुम व्यायाम करो, वो वहीं पे जाकर इनसे इनसे ले रहा है। मैंने मैं व्यायाम करूंगा, करेंगे ना नहीं करेंगे, कितना करेंगे, वो इनसे ले रहा है हेल्प, इनसे एडवाइस लेता है। कोई आयुर्वेद लोग से लेता नहीं। लेकिन आयुर्वेद के बारे में ये व्यायाम हमारा है, ये व्यायाम के बारे में हम लोग रिसर्च किया है। हम लोग ये में क्या होगा, ये क्या होगा व्यायाम से? लाघव कर्म, कर्म सामर्थ्यम, दोषख्यम, बल वृद्धि, 4 चीज होता है व्यायाम से। मैं हर आदमी को बताता हूँ 4 चीज जरूर होगा, जरूर होगा। लाघव कर्म, कर्म सामर्थ्यम, दोषख्यम, बल वृद्धि, आपका बल वृद्धि होगा। आपका अंदर में छिपा हुआ दोष वो नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये जो श्लोक है, लाघवं कर्म सामर्थ्यम दीप्ताग्ने मेधसः क्षयः विभक्त घनगात्रोक्तम व्यायामात होगा। ये श्लोक में लिखा है, ये चीज आपको होगा होगा होगा। तो इसलिए हमें इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारी और व्यक्ति के लिए, तो ये सुस्त रहने के लिए। और ये ड्यूरेशन कितना होगा? लोग व्यायाम करते क्या दिन भर छुट्टी लेकर दिन भर करेगा क्या? क्या दिन भर करेगा ना? वो व्यायाम कितना करेगा? अर्ध सत्या निश्चय व्यस्तु, अर्ध सत्या, इनको टिल लिक्विडेशन ऑफ हाफ ऑफ द रिजर्व एनर्जी। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो हमको आधा शरीर में जो गच्छित हुआ है, जो शक्ति है, एनर्जी है, बल है, वो खर्च होने तक हम करेंगे। लेकिन करते नहीं, कोई करता नहीं, इनको मालूम नहीं करेंगे क्यों, वो गलत करते हैं। तो इसलिए हमें इनको एडवाइस देना चाहिए। वो कैसे हमको पता चलेगा? ना इसको पता चलेगा, सबको पता है। एक इसको क्या है, वो जो इनको स्वेटिंग इन फोरहेड,
स्वेटिंग इन एक्जिला एंड स्वेटिंग इन आलिनाजी। आलिनाजी वो जो नाक है ना, नाक नोज, नोज का ऊपर थोड़ा आप देखेंगे ड्रॉप 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 आएगा, ठीक है। और हृदय स्पंदन बढ़ जाएगा, हृदय स्पंदन बढ़ जाएगा, आपको क्लांत अनुभव होगा। ये सब चीज जब आएगा तो ये आप करेंगे। और थोड़ा शीतकाल में और वसंत काल में आप जो थोड़ा ज्यादा कर सकता है, लेकिन अदर सीजन में थोड़ा कम करके थोड़ा इनको गाइड करना पड़ेगा। और ये व्यायाम करने से हमको बहुत कुछ फायदा है, हमको बचाएगा। अभी जो कार्डियक इलनेसेस अमेरिका में एवरी थर्ड डेथ इज ड्यू टू कोरोनरी वेसल डिजीज। अमेरिका में एवरी थर्ड डेथ इज ड्यू टू हाइपरटेंशन। इंडिया में हार्ट डिजीज बढ़ता जा रहा है, इंडिया में ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ा हुआ है। तो हम इनको घटा सकते हैं, हमें जबरदस्त बोल सकता है कि हम इसको घटा देंगे। इंसिडेंस वी कैन ब्रिंग डाउन। कैसे कैसे करेंगे ना, ये जो शास्त्रीय आधार से हम इसको करेंगे। ये क्या ना, इसको ये जो व्यायाम हुए इसको करेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम आफ्टर एक्सरसाइज 15 मिनट हमें प्राणायाम कर सकता है, अनुलोम विलोम को पार्वती भस्त्रिका और भ्रामरी वगैरह कर सकता है, और मेडिटेशन कर सकता है। मेडिटेशन मेडिटेशन भी हम थोड़ा करेंगे। और कौन लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, करेंगे कौन लोग, हु दोज हु शुड नॉट डू एक्सरसाइज, ये शास्त्र में लिखा है। जैसे पित्त एंड वात डिसऑर्डर्स, ये थोड़ा मैं इसका कहने के जैसे टीचर होने के नाते, being I was a teacher, इसी वात डिसऑर्डर्स से डोंट डू एक्सरसाइज, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आपको समझदारी चाहिए। जो वात व्याधि में लिखा है व्यायाम करने के लिए, वात व्याधि में ठीक करने के लिए एक्सरसाइज व्यायाम लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है कब मत करो। तो इसलिए थोड़ा देख के इसको समझ के करना पड़ेगा। अभी जो सीनियर सिटीजन होता है, बहुत सीनियर सिटीजन, और वो किड्स छोटा बच्चा होता है, इसको भी नहीं करना चाहिए। एंड डिस्पेप्सिया जिसको भूख वूख नहीं है वो भी नहीं करना चाहिए। और जब आप ज्यादा करेंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ज्यादा सोच लगेगा, एक्सेसिव थर्स्ट, रिलैक्सेशन, सीवियर डिस्निया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एग्जॉशन, फीलिंग ऑफ डेबिलिटी, काश, ज्वर एंड वोमिटिंग, ये सब आपको क्या है हो सकता है। और नेक्स्ट वन इज उद्दोलन, इसका तुलना नहीं है। वो आयुर्वेद में ऋषि लोग क्यों इसको निकाले, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में होता है। जैसे मैं उड़ीसा का हूँ, मैं तो एमडी केरला यूनिवर्सिटी में किया था, लेकिन केरला में मैं जाकर इसको सीखा। ये उधर तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ने से पहले जो अप टू 81 78 टू 81 बैच, हमें 81 में 81 तक उड़ीसा में वो उद्धरतन का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन उद्धरतन इतना अच्छा चीज होता है। अभी डायबिटीज इतना बढ़ता जा रहा है, अभी डायबिटीज क्लिनिक में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, करना चाहिए। हम करते कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वी आर इम्प्लीमेंटिंग। अभी मैदा ओबेसिटी वी आर इम्प्लीमेंटिंग, a number of diseases we are now implementing this उद्धरतन। उद्धरतन है जो मेरी रूप, ये क्या काम है उद्धरतन? उद्धरतन होता है कफ हरण। कफ हरण, कोई मोटा आदमी बार बार कफ से पीड़ित होता है, इनको श्वास से पीड़ित होता है, इनको आईएलडी वगैरह हो सकता है, इनको लंग्स में, जैसे लंग्स में कुछ थोड़ा बहुत इनको फाइब्रोसिस आ गया है, इनको कफ की वजह से कुछ ये होता है। वो मैदा इनका बहुत भारी हो गया है। मैदा जैसे मधुमेह, मधुमेह में मैदा द मेन मेन कल्प्रिट, मधुमेह में कफ कल्प्रिट और मैदा कल्प्रिट। लेकिन उद्धरतन का दो ही काम करेगा, कफ को भगा देगा और मैदों को भगा देगा। तो ये शास्त्र में लिखा है, तो हमें इसको ध्यान से करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। अभी ये मधुमेह में जो उबेज उबेज केस में, ओबेसिटी केस में
और ये कफ जो व्याधि में ये देना चाहिए। और स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम, वो त्वक प्रसाद करम, त्वक को प्रसाद करने के लिए, त्वक को ग्लानि ये सब लेने के लिए ये मिटिगेट्स कफ, हेल्प्स टू बर्न ब्रिंग्स स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड स्किन कम्प्लेक्शन। स्किन कम्प्लेक्शन को वो अच्छा करेगा। जैसे लोग को जो जैसे देखिए आपको जो माँ लोग बच्चा पैदा करता है, किसी को पोस्ट ऑपरेटिव कुछ स्कार से वो है, इसी में भी हम थोड़ा इसको ट्रायल कर सकता है। उस स्किन पर इनका भारी असर पड़ेगा, लेकिन दवाई में हमको फर्क होना चाहिए। दवाई चूज करने में जैसे आपको मेथी देते हैं, तो जैसे त्रिफला हम देते हैं, जैसे हमको ये हमारा यहाँ उड़ीसा में बहुत मिलता है, ये दाली का तो कोलथ है, कोलथ मिलता है, कोलथ 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 हमारा उड़ीसा में मिलता है। तो कोलथ को हमें भी देते हैं, इसको यूज करते हैं। वो नीम का पत्ता को सुखा के पाउडर करके इसको हम देते हैं। वो बहुत सारे पत्ता भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये उद्धर्तम इज ए वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट। ये वी कैन यूटिलाइज टू मेंटेन गुड हेल्थ, टू प्रिवेंट डिजीजेस। इनसाइड जो छिपा हुआ है, इसको हमें हटाने के लिए ये हमारा एक माध्यम है। उष्णांबु स्नान, उष्णांबु जो स्नान है, गर्म पानी में स्नान कोई करेगा, जिंदगी भर इसको रोग नहीं। मैं आपको ये आयुर्वेद माध्यम से ये वचन देता हूँ कि जो आपको उष्णांबुपान स्नान करेगा, लोग बोलते हैं ठंडा पानी में, लेकिन ठंडा पानी मस्तक में डालिए, लेकिन शरीर के लिए आपको गर्म पानी डालना बहुत बहुत लाभकारी होता है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर बात, कौन बात नहीं करेंगे वो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। जो फेशियल पैरालिसिस है, वो आंख में बीमार है, कान में बीमार है, डायरिया है, फ्लैक्टुलेंस है, राइनाइटिस है, इंडाइसन है, एंड हु हैव रिसेंटली हैड फूड। मैं वैद्य लोग को निवेदन करूंगी, मैं वैद्य लोग को निवेदन करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो खाना खा के स्नान करते हैं। इनको हाथ जोड़कर बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, वैद्य लोग बोलना चाहिए, भाई ये भूल मत करो, तुम्हारा जिंदगी को विपद को मत लो। कम से कम हमें बोलना चाहिए, स्नान करके, खाना खा के स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं खुद दिखा है, मैं बहुत तो गाली देता हूँ उनको, और इनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कम से कम इसको मत करो। और ये आहार और भोजन, ये जो बात है आहार और भोजन, ये इसका बारे में आहारांत पिबेत तक्रः, आहारांत पिबेत तक्रः, ये सबको पता है। लेकिन लोग दही खा देते हैं, आहार का बाद आहार का साथ दही खाते हैं। इनको मना करिए। दही खाने से अभिसंधि होता है, स्रोत को अवरोध करता है, वो मधुमेह को प्रिसिपिटेट करता है, वो मेदों को प्रिसिपिटेट करता है। तो इसको भाई मत लो। क्या लेंगे ना आप? तकरुण, 1 कप दही में 4 कप पानी डाल के, इनको उबाल के मतलब है जो छुको करना है हमारा बोलते हैं, इसको उबाल के छुको करके, तो फिर इसमें दो दो टीप, जो इसको खाएगा इसका टीप जितना बड़ा होता है, वही टीप में 2 टीप मिर्चा 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 डालेंगे। मिर्चा मिर्चा मरीच, मिर्चा का मतलब है नहीं है लंका, वो मरीच, वो क्या है, शुंठी पीपली मरीच जो त्रिकटु का एक अंशीदार है, वो मरीच डालेंगे। और इसका साथ वो डालेंगे क्या है, अजवाइन, अजवाइन अजवाइन डालेंगे। बहुत लोग बोलते हैं आकर, साहब मुझे गैस होता है, गैस पेट में भर जाता है, खाना खाने के बाद ऐसा ऐसा होता है, गैस होता है। तो इनको गैस भाग जाएगा, गैस भाग के चला जाएगा। आप इनको कम से कम
कम से कम थोड़ा मेहनत करके इनको बोलो कैसे प्रस्तुत किया जाए। और इनको अजवाइन चूर्ण जो गैस होता है 1 चम्मच, नहीं तो गैस नहीं है तो आधा चम्मच, तो दिन में एक बार आफ्टर लंच ओनली खाना चाहिए। वो खाने से इनको बोला है जो हमारा आयुर्वेद का जो उद्देश्य होता है वो फलवती होगा। आहारांत पिबेत तक्र, वो तक्र बता है, लेकिन दही नहीं। आहारांत पिबेत दही है क्या? लेकिन लोग बताते हैं दही, ये गलत है। मैं बोलता है गलत है, जो साइंस जो बोलता है गलत है, वो भटकाया जाता है, वो लोग को मिसगाइड करते हैं। तो लोग इसलिए हमारा मरते हैं, प्रीमेच्योरली रोग को संक्रमित होता है। और क्या है ना, दिवसांत पिबेत पय, दिवसांत पिबेत पय, दिन खत्म हो गया, लोग आकर हमको बोलते हैं सर में दूध खाते हैं, सुबह दूध खाते हैं, दोपहर में दूध खाते हैं, शाम को। लेकिन शास्त्र में होता है दिवसांत पिबेत पय, दिन खत्म हो गया है तो आपको 7 बजे एक गिलास दूध आप खा सकते हैं। इसलिए इनको टाइम होना चाहिए इनको। और रात्रिचर्या जो होता है वो हमारा शास्त्र में बता है, ये कश्यप द्विभुजिश्च षण्मूत्र, षण्मूत्र द्विपुरुषः, ये बॉडी वाइटल, ये बेसलाइन, एक श्वाप स्लीप एट स्ट्रेच फॉर 6 hours, द्विभुजिश्च 1 lunch and 1 dinner, षण्मूत्र 6 बार पेशाब और द्विपुरुष के 2 बार पैखाना, ये हमारा है। लेकिन रात्रि चर्चा में हमें क्या करता है, हमें लोग अभी साइंस बोलते हैं हर 2 घंटा में आप खाना खाओ। क्यों? क्यों? तो तुम्हारा पेट में अल्सर हो जाएगा, पेट में अल्सर हो जाएगा। मैं वही चीज बताया थी संगीत में, पेट में अल्सर है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। वो शास्त्र में बताए हैं, शास्त्र में बताए हैं 2 घंटा में खाने से वो जो खाना है वो स्टमक में 4 घंटा रहता है। इट रिटेन्स फॉर 4 to 5 hours। तो बिफोर 4 to 5 hours if you take food, then naturally it will, new food will be mixed to undigested food. So what will happen? What will happen? The condition of the person, the person will die। वो आम हो जाएगा, आम। तो आम कुछ भी कर सकता है शरीर में। आम ऐसा चीज है, लास्ट टाइम में मैं आम के बारे में बताया था, लास्ट टाइम मेरा जो टॉक था वो आमो था, आमो बारे में। तो आमो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इसको ना करने करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। हमें क्या कार्यक्रम करना चाहिए? जो रात्र में जो हमें खाना खाएंगे, वो जब खाना खाएंगे अर्ली 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 डिनर, अर्ली डिनर। जैसे हम लंच को अर्ली खाते हैं, मैं तो सब लोग को बोलते हैं मध्याह्न भोजन, लोग को बोलते हैं मध्याह्न भोजन। लोग को पूछते हैं मध्याह्न कब भाई है, तो मध्याह्न होता है 12 बजे, लेकिन हमारा छुट्टी होता है 2 बजे। तो दो मध्याह्न होता है ना अपराह्न होता है। तो अपराह्न में खाने से क्या होगा? तो हमें बिल्कुल मरेंगे, बहुत बहुत खराब होगा। अपराह्न में खाने से वो मध्याह्न भोजन जो होता है मध्याह्न में करना चाहिए। तो ऐसा रात्रि में जो होता है, रात्रि का प्रथम प्रहर में हम खाना चाहिए। एक प्रहर 2 घंटा होता है, 8 बजे तक खा लेना चाहिए। हमें खा के कम से कम 2 घंटे के बाद हम बिस्तर पर चला लेना चाहिए, बिस्तर के चला लेना चाहिए। ये जो है हमारा शास्त्र में लिखा है, ये इसका पर ध्यान देना चाहिए। और जो जो हमारा दिवसांत पिबेत पयः, ये तो हमें डिस्कस हुआ। और जो पादाभ्याम वगैरह करने के लिए, ये आपको टीथ साफ करने के लिए भी बताया गया, और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने के लिए बताया है, और वीरासन में बैठने के लिए आपको बताया है। ये सब जो कोई कर पाएगा, दिस इज ऑल्सो कमिंग। वी हैव टू प्रिपेयर ए प्लान प्रोटोकॉल for implementation, lesson wide and everywhere। Then this is the summary and conclusion.
ये क्या है? दिस इज ऑल्दो डज नॉट कम अंडर द साइंटिफिक कैटेगरी। ये जो हमारा मैं आज बोला ट्रीटमेंट ऑफ हेल्दी पीपल, ये साइंटिफिक कैटेगरी में नहीं आता है, बट दिस एड्स वैल्यू इन माइंड्स ऑफ पीपल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज। कोई प्रोटेक्शन चाहता है रोग से, तो इनका माइंड को कम से कम वो थोड़ा हिलाएगा, एंड दे विल कम द हेल्थ कस्टोडियंस। हमारा जो सरकार का जो हेल्थ कस्टोडियंस है ऑफ आवर कंट्री will think over the matter seriously, and the views of Ayurveda will stand as a great support to remain healthy, which is a priceless possession. ये हमारा जो आयुर्वेद का जो देन है, आयुर्वेद का जो देन है, ये इसको इसको वी कैनॉट इग्नोर। तो हमें इसको हमारी जो विशिष्ट गुरुवर्ग है वो कम से कम इसका ऊपर ध्यान देंगे जरूर ध्यान देंगे। सबको पता है, मैं कोई नया बात आपको सामने नहीं रखा, सिर्फ इसको रखा कि कम टू सेंसिटाइज आवर यंग बॉयज। देन इसलिए भागवत तो हमारा बताए हैं, नित्यम हिताहार विहार सेवी मुख्यकारी विषय सुसक्त दाता सम सत्य पर क्षमावान आत्मों से बीच भवत्य रोग। इसको रोग नहीं है, ये सबको पता है, मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करता। तो आप लोग को जो हमें जो लोग हमारा क्लिनिक में जो लोग आते हैं, हम इनको पूछता है भाई आरोग्यम भोजनाधीनम, आरोग्यम भोजनाधीनम क्या बताया क्या शास्त्र में? आरोग्यम औषधाधीनम, आरोग्य औषध खाने से क्या आप आरोग्य हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा तुम्हारा दवाई खाने से। दवाई खाते हैं अलग कारण के लिए, लेकिन आपको आरोग्य आपका घर में है। आरोग्यम भोजनाधीनम, भोजन का अधीन आरोग्य छिपा हुआ है। तो इसको क्या भोजन देना चाहिए, नहीं भोजन देना चाहिए। हमें इसको वी आर नाउ एवरी डे एटलीस्ट आई एम गिविंग ट्रेनिंग टू माय स्टूडेंट एंड टू माय पेशेंट्स एंड सेंसिटाइजिंग। ये खाओ ये मत खाओ, खाने से आप जल्दी खराब हो जाएगा। ये इसका ज्यादा मत डिपेंड करो दवाई पर। तो इनको रेफरेंस तो छोड़िए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं हृदय से। मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी हमारा बड़े लोग बहुत हो जो हिंदी को बहुत ये करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी में कहने के लिए कोशिश किया है। इसमें भूल भटका कुछ हो सकता है, इसलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। अरे दास भविष्य जी में बहुत अच्छी हिंदी है, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी दास जी, बहुत सुंदर हिंदी है, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी दास जी। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा थैंक यू आपने, सर। मैं गया था आपके उड़ीसा गया था भुवनेश्वर। जी जी, हम पुरी का जगन्नाथपुरी। हाँ हाँ मैं सर भुवनेश्वर गया था। हाँ भुवनेश्वर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी चलिए सर, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा दास जी आपका, बहुत सुंदर व्याख्यान रहा। हाँ जी सर, जी सर, दायक रहा, बच्चों इससे जो है बहुत लाभान्वित होंगे, और आप जैसे अनुभवी लोगों के व्याख्यान सुनने को कहाँ मिलते हैं। लास्ट में कौन प्रश्न करिए ना, प्रश्न करिए, प्रश्न ही अच्छा है। जी सर, जी सर, जी सर। If anyone is having any doubt, then please ask you, sir. अगर किसी को कोई डाउट होगा प्लीज सर से पूछिएगा। Sir, you have not given importance to this this Kavalagraha, Gandosha, this Dantadhavana. It seems that these things, these areas are not covered. Yes, sir, right, sir. You have pointed out rightly, but I have not incorporated all due to this time limit. Time limit, I have not incorporated. These are necessary. This Kondusha and this Kapalagraha and all this. There are many avenues. There are many guidelines.
So all we have to sit, and at least this RAV, our RAV is the great one, that they are streamlining everything. I think in the future, if we'll cooperate, and they can give us like a proposal to our government, like let there be implemented. This is the guideline to protect health. You are right, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Very nicely कृष्णैया explained. कृष्णैया जी नमस्कार, कृष्णैया जी नमस्कार, Namaskar, sir. Namaskar. वाजपेयी जी को प्रणाम, वाजपेयी जी को प्रणाम, मदन गोपाल जी प्रणाम। आप जैसे जी, ऋषियों के सीताराम, दर्शन हो जाते सीताराम, हैं, आप जैसे महर्षियों के दर्शन हो जाते हैं, सौभाग्य मिल जाता है। आज गुरुवार को, बाकी तो ठीक ही ठीक है। चलिए ठीक। Thank you so much for your patient listening. Now, I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devendra Trigunadi, President of Governing Body RAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our Director, Dr. Vandana Saruha, who is guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Kutcha, sir, Secretary of Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the groups, Sishyas, and other scholars who, with their presence and active contribution, make their webinar a successful one. Thank you to all. Namaskar. यार भैया हिंदी में धन्यवाद दिया कर यार, तू तो हिंदी जानता, बढ़िया हिंदी में मैंने बोला कर धन्यवाद यार, अंग्रेजी में कहाँ बोलता है। बिल्कुल सर, अगली बार जरूर करेंगे सर। देखो वो तो हिंदी में व्याख्यान दे रहा है, तू धन्यवाद अंग्रेजी में दे रहा है। बिल्कुल सर। जी सर, जी सर। जी सर, नमस्ते नमस्ते। दास जी हम लोग आए थे, दास जी त्रिगुणा जी के साथ आए थे हम, पूरी आपको ध्यान होगा, हम आए थे और त्रिगुणा जी अच्छा हो गए। हाँ, तो सर आपको हमको थोड़ा ध्यान याद करना था, मैं आपको थोड़ा सेवा करने में सुझाव हमको मिल गया होगा। ठीक है सर, भविष्य में जब कोई सुझाव बहुत अच्छा आएगा। दास जी, आपका बहुत अच्छा प्रेरणादायक और हिंदी बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। देखिए आप कोई हिंदी टूटी फूटी हो, लेकिन आपने हिंदी व्याख्यान दिया। हिंदी जो है बहुत अच्छा, लोगों को समझ में ही आती है, बच्चे भी जी समझ सर, हम लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं सर, भूल भटका तो रहता है, नहीं, ग्रामर बहुत में बहुत अच्छी है। भूल है। शर्मा जी को नमस्कार, ब्रिजभूषण जी को नमस्कार। जी सर, जी सर, जी सर। कैसे हाल चाल है आपके? हाँ शर्मा जी ठीक है। और भाई साहब, और हमारे चित्रकूट वाले तो आ रहे हैं आपके यहाँ, चित्रकूट वाले आपके यहाँ, हितेश जी के यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा कार्यक्रम तो है आपका।